Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of NAST and I really hope by now you know I'm Sana Zafar. आज हम आपके लाए हैं एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड because today we are bringing you 25th interview on our channel. I'm very excited for many reasons. Firstly, of course, एक छोटा सा फर्स्ट माइलस्टोन हमने अचीव किया है आप सब लोगों की सपोर्ट से. आई एम रियली ग्रेटफुल. देयर आर सो मेनी पीपल, इफ आई स्टार्ट मेंशनिंग probably I'll run out of time. बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. I am really grateful for all the unconditional support, love, and everything, the time you have shared with us. Of course, I knew a few people. I'm an NBS graduate myself. I taught at SEEKS. I taught at SMME. My brother is from MCS. My husband is from EME. So I knew a few people from NAST already. But when we started, I had no idea that itna easily I would be able to reach out to everyone all over the globe. All of you have been extremely supportive. Everybody went out of their way to help us. Thank you. I cannot thank you enough. Please keep watching. This is just the 25th interview. This is just the first milestone. Inshallah, we're hoping to expand this channel. And with your support and with your ideas and help, we'll take it further. I would also like to say thank you to our first sponsors, Peak SNR Technologies, Pakistan. Thank you very much for your trust in our channel. Thank you for your support. Hopefully, inshallah, we'll progress more and we'll keep on working together. And finally, probably the most important reason for my excitement today is the guest. आज हमें join किया है एक superwoman ने who needs absolutely no introduction. We have with us Miss Maria Fahim Qadri. Assalamu alaikum, Maria. Thank you so much for joining us. वालेकुम अस्सलाम सना and thank you so much for such a lovely introduction. बहुत चढ़ा दिया आपने. सुपर कितने. सबसे पहले तो thank you to you for doing this effort. इतने सारे alumni का हमें भी आपके थ्रू पता चल रहा है. And congratulations on this milestone. बहुत जल्दी 25 तक आप पहुंच गए हो. And I can easily envision 25,000th episode of this coming sometime soon, inshallah. Miss Maria ने NAST से graduate किया back in 2007 when she completed her MBA from NBS. Currently, she is Director, University Advancement Office at NAST. आइए इनसे मिलते हैं. Thank you so much, Maria, for fulfilling your promise of being my 25th guest and making our show so special. Thank you so much for taking the time out. Thank you, Sana. Thank you for inviting me, and I'm really humbled. Thank you. इससे पहले कि हम आपकी जर्नी पूछें, which is almost like NAST की journey as well, and we are very interested to know all about that, about all your efforts and initiatives there. सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि how many hours, कौन सा special package है आपके पास? आपके पास एक दिन में 24 hours से ज़्यादा होते हैं. How do you manage all of that? Seriously. यार बस पैशन के साथ चल रहा है तो चल रहा है. अभी तक काम नहीं लग रहा. जब काम लगना शुरू हो जाएगा तो बहुत बोरिंग हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज बहुत ही चैलेंजिंग किस्म का टास्क है. स्प्रेड है, ग्लोबल है, इंस्टीट्यूट के अपने डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है, लेकिन टिल नाउ इट डजंट फील लाइक वर्क. बहुत ही पैशन के साथ चल रहा है, बहुत खुशी के साथ चल रहा है. और अभी तक मैं लोगों को कहती हूँ दिस इज माय 14th ईयर एट नास्ट. अभी तक मुझे मंडे ब्लूज नहीं हुए. तो द डे आई विल एक्सपीरियंस मंडे ब्लूज तो फिर उस दिन मैं सोचना शुरू करूंगी कि नाउ आई नीड टू मूव टू समथिंग एल्स. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वर्क इज रियली एक्साइटिंग एंड आई थिंक उसकी वजह ये है कि बहुत मेरी तबीयत के हिसाब का काम है. मुझे अपनी पर्सनालिटी के साथ आसान लगता है. तो बस चल रहा है और चला रहे हैं जब तक अल्लाह चला रहा है. Mashallah. And I must say that it's visible. Everybody can see how you put your heart and soul in it and how you are taking it all forward. We are very grateful for your efforts. अभी हम उसकी डिटेल में भी जाएंगे, उस सब के बारे में भी पूछेंगे. लेकिन स्टार्ट करते हैं. आपने NAST से ग्रेजुएट किया और फिर आपने NAST ज्वाइन किया. You joined as faculty. प्लीज उसके बारे में बताइएगा क्या क्या हुआ. मैं NAST में एंटर हुई थी 2005 में एज अ स्टूडेंट फॉर बिजनेस. तो वहां से मेरा सफर स्टार्ट होते और अभी NAST के गेट से एग्जिट नहीं हुआ मेरा टेक्निकली. तो काफी लंबा हो गया है ये सफर. तो इनिशियली स्टूडेंट के तौर पे आई थी आईटी में एमबीए करने के लिए बिकॉज आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिफोर दैट. लेकिन मैम जीना जबार की क्लास थी, मार्केटिंग पढ़ाया उन्होंने और दैट वाज जस्ट लव एट फर्स्ट साइट. आई न्यू दैट आई वांट टू डू मार्केटिंग. वहां से फिर बिजनेस स्टडीज, मार्केटिंग पढ़ा, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ज्वाइन किए, उनके साथ कुछ अर्सा काम किया. Then I joined NAST as faculty in 2008. Branding and marketing ही पढ़ा रही थी, UG and then PG and then EMBA का classes लिए कुछ अर्सा. 6 years business school के साथ सफर रहा. अपना स्कूल था, बहुत मजा आया.
और उसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज ये हुआ कि 2011 में आई बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स फॉर बिजनेस स्कूल. सो जो प्रेसिडेंट स्टूडेंट अफेयर्स का रोल था ना, आई थिंक वहां से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, बिकॉज एकदम जितनी स्टूडेंट बॉडी थी उसके साथ एक कनेक्शन बन गया. स्टूडेंट डिसिप्लिन कमेटी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज, उनकी सोसाइटीज ऑन कैंपस, क्लास मैनेजमेंट, स्केजुलिंग, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट हुआ और डायरेक्ट इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स के साथ. एंड आई रियली लव्ड दैट. वो पार्ट मुझे बहुत पसंद आया. उसमें हमने फिर, मेरे पास नस्ट की सेंट्रल 2 सोसाइटीज भी थी, डिबेटिंग सोसाइटी एंड ड्रामा सोसाइटी. बहुत ड्रामे किए, बहुत डिबेट्स किए, और ये जो शौक थे मेरे, ये भी पूरे हो गए नस्ट के थ्रू. उसमें ये था कि आई थिंक उससे मुझे एक तो इवेंट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, बहुत सारा वो एरियाज जो मैंने एज अ फैकल्टी खुद भी नहीं ट्राई किए थे, एज प्रेसिडेंट स्टूडेंट अफेयर्स मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला. स्कोप बहुत वाइड हो गया. एंड आई थिंक उसके साथ विजिबिलिटी भी फ्रॉम बिजनेस स्कूल टू दी हेडक्वार्टर्स काफी ज्यादा मेरा आना जाना स्टार्ट हो गया. 2015 में NUST had to develop this advancement office, क्योंकि HEC ने की एक रिक्वायरमेंट थी कि सब पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में एडवांसमेंट होनी चाहिए, एडवांसमेंट ऑफिसेज हों. सोल पर्पस ये था, एक ऑफिस होना चाहिए जो आउटवर्ड कनेक्टिविटी पे काम करे, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी के साथ, कॉर्पोरेट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करे यूनिवर्सिटी के साथ, अदर देन गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर्स है. सो उस वक्त के जो रेक्टर थे, जनरल अस्कर, ही कॉल्ड मी टू हिज ऑफिस. इंटरेस्टिंगली मैं क्लास लेने जा रही थी, सो मैं पार्किंग में गाड़ी लगा रही थी और मुझे कॉल आई, जनरल साहब बुला रहे हैं, आप फॉरेन हेडक्वार्टर आ जाएं. एंड आई वेंट देयर, और उन्होंने मुझे ये ऑफर किया कि आप इस ऑफिस को रेज करें, हमें हेल्प करें. और इनिशियली इरादा ये था कि 2 साल हेडक्वार्टर के साथ गुजारूंगी एंड देन आई विल गो बैक टू बिजनेस स्कूल. लेकिन 2015 से अब ये 6th ईयर हो गया है, आई एम विद एडवांसमेंट ऑफिस एंड इट्स एन एक्साइटिंग जर्नी हियर एज वेल. सो जब बोर होंगी तो फिर वापस बिजनेस स्कूल. माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बात है. और मुझे नजर आ रहा है, यू नो, योर एंथुसियाज्म, हाउ यू डिस्क्राइब इट, जिस तरह आपने सारी बात की है ड्रामेटिक सोसाइटी की एंड बीइंग इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स. ऑनेस्टली अगर हम बहुत ऑन सरफेस देखें तो सेइंग कि क्या क्या चीजें आपको मैनेज करनी पड़ी, तो दे साउंड लाइक अ हेडेक. कि बच्चों के क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, और उनकी, आप ट्रांसपोर्ट की भी बात कर रही हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स की भी बात कर रही हैं, आप उनकी सोसाइटीज की भी बात कर रही हैं. तो दैट मस्ट टेक, यू नो, यूनिक पर्सनालिटी टू हैंडल दैट. यार सना, असल में ना वाकई उस वक्त मैंने, हालांकि इंटरेस्टिंगली मैं बहुत शदीद किस्म की इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे से पीपलिंग बहुत आसान नहीं होती है, बट समहाउ आई जस्ट लव्ड इट. आई मीन आई वाज टोटली देयर. वो स्टूडेंट्स के साथ भी दोस्ती हो गई. वो ऐसा नहीं था कि मैं एक मैनेजरियल रोल में थी और वो स्टूडेंट्स थे. वो अभी तक मेरे फ्रेंड्स हैं. और उनके साथ वो वाला रिलेशनशिप होता था कि वो कॉल करते थे कि मैम हॉस्टल में गोभी पकी है, आपके घर आ जाएं, पराठे बनवा देंगी. और मेरे घर में 20-20, 21-21 लोग खाना खा रहे होते थे. वॉशिंग मशीन में बॉयज अपने ला रहे हैं कि लॉन्ड्री करनी है, लॉन्ड्री बंद हो गई है. तो इस किस्म का एक रिलेशनशिप था. मेरे ऑफिस में एक काउच होता था जिसपे स्टूडेंट्स आके बैठ के सारा दिन अपनी स्टोरियां, कई दफा अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने घर के मसाइल. अनफॉर्चुनेटली उस तरह लोग, बच्चे काउंसलर्स के पास नहीं जाते. लेकिन आई फील वेरी हम्बल्ड एंड आई लव द फैक्ट दैट दे फाउंड इन मी एन एल्डर सिस्टर और अ मदरली फिगर, जिसके पास आके वो बहुत सारी चीजें शेयर कर लेते थे. और वो जो दोस्ती का रिलेशनशिप होता था, उससे वो जॉब और आसान हो गई. सो बेसिकली आई ऑलवेज फाउंड गुड टीम्स. देयर आर ऑलवेज पीपल अराउंड मी जो काम करते हैं, और वो काम कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ वहां होती हूँ और मुझे उसका फायदा हो जाता है. राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होने से क्रेडिट मिल जाता है. वरना काम करने वाले लोग मेरे इर्द गिर्द अच्छे रहे हमेशा. सो इट वॉज मोस्टली टीम वर्क जो अच्छा होता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इसलिए आसान हो गया. प्लस आई विल डेफिनेटली मेंशन फहीम आजम है, माय हस्बैंड. My kids were very young when I started. Aima was just 2 months old actually, जब मैंने पहली क्लास ली बिजनेस स्कूल में. तो फहीम उसको कार में लेके क्लास के बाहर बैठे होते थे, और मेरी क्लास खत्म होती थी तो मैंने उसको लेना होता था, उसको संभालना होता था. लेकिन ये सारा टाइम हम दोनों ने बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया, खासतौर पे उनकी सपोर्ट से ये वाला सारा सिस्टम जो है ये चलता रहा. आई एम ग्लैड वेयर वी रीच्ड. जी जी, नहीं, आई वाज कमिंग टू दैट के डेफिनेटली फहीम भाई हैज प्लेड अ ह्यूज रोल हियर. और आपसे जो मैं पूछ रही हूँ आप कैसे मैनेज करती हैं एंड एवरीथिंग, आई थिंक वी मस्ट मेंशन के द काइंड ऑफ फील्ड फहीम भाई इज इन इट.
इतनी डिमांडिंग फील्ड है वो, उसके तो आज ही और तरह के होते हैं। एंड आई थिंक वुमेन कांट रियली वर्क अगर आपके हस्बैंड इस तरह मीडिया में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, और नॉट जस्ट विद वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट्स और एनीथिंग। आप उनको मूवीज में भी देख रहे होते हैं, उनको ड्रामाज में भी देख रहे होते हैं। ही इज एवरीवेयर एंड डूइंग सो मच माशाल्लाह। और उनके ही घर से कोई इतना डिवोटेडली इतना बड़ा काम कर सके, दैट्स समथिंग। सो माशाल्लाह, डेफिनेटली अ पावर कपल वी हैव देयर माशाल्लाह। आई थिंक वो मेरे से ज्यादा बड़ा फेमिनिस्ट है। वो वुमेन राइट्स के लिए जितना वो काम करता है, वो आई एम जस्ट ब्लेस्ड के उसकी ये सपोर्ट साथ होती है। बिकॉज ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे आपके जिस तरह के चैलेंजेस होते हैं, फैमिलीज बहुत बड़ी हैं, उनके साथ भी इंटरेक्शन आपने रखना है, बच्चे यंग एज के हैं, ग्रोइंग एज है, बहुत सारा सोशल इश्यूज होते हैं इन सारे एरियाज में। इफ योर हस्बैंड इज नॉट सपोर्टिव, इट्स रियली डिफिकल्ट। आई मीन फॉर मी इट वॉज ईजी बिकॉज फहीम वॉज देयर। बहुत सारा कुछ वो फहीम ने संभाल लिया, तो मेरा भी साथ साथ चलता रहा। जी माशाल्लाह। और फहीम भाई भी हमारे सीनियर हैं, जस्ट इन केस somebody doesn't know, he's also from NBS, मैम मारिया के बैच से ही थे। So more power to him. Thank you फहीम भाई, keep doing what you're doing and keep making us proud. प्लीज थोड़ा सा आइएगा, हमें बताएं कि आप में ये जो इतना ज्यादा जज्बा है ऑफ हेल्पिंग अदर्स, जिसका आपने एक थोड़ा सा हमें अभी सिर्फ टीजर दिया है, हाउ स्टूडेंट्स वुड कम अप टू यू एंड यू नो वुड ओपन अप टू यू एंड आस्क यू फॉर द हेल्प एडमिनिस्ट्रेटिवली भी चीज़ों में जो उन्हें चाहिए था, दैट्स वन थिंग। बट उसके अलावा इमोशनल बैगेज वो आपके साथ शेयर करते थे एंड यू वर देयर टू हेल्प देम, टू गाइड देम। ये हेल्पिंग अदर्स का जो जज्बा था, और ऐसे आप कहाँ से कहाँ ले गई माशाल्लाह, हेल्पिंग सो मेनी पीपल फाइनेंशियली एज वेल, टेकिंग ऑल दो स्टेप्स। इसके बारे में बताइएगा, क्या क्या हो रहा है नास्ट में, जितने आपके इनिशिएटिव्स हैं, नीड इनिशिएटिव है, थिंग्स लाइक दैट, प्लीज बताइएगा। सना, अब बस अल्लाह वाज वेरी काइंड और अल्लाह हैज ऑलवेज बीन काइंड। उसने आसान करता गया सफर को। वो बच्चे जो हमारे साथ चलना शुरू हुए, उनसे दोस्ती में आपको उनके बहुत सारे मसले जब पता चलते हैं, तो आपको समझ आती है कि एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट पाकिस्तान में एजुकेशन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अफोर्ड ही नहीं करते हैं एजुकेशन को। तो वो जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब मैं क्योंकि खुद नस में फैकल्टी थी, मुझे नहीं पता था कि किस किस्म के बैकग्राउंड से स्टूडेंट नस तक पहुंचता है। तो बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड लाइक टू जस्ट पुट अ फ्यू थिंग्स फॉरवर्ड, बिकॉज आपका प्रोग्राम जो है बहुत सारे नस्टियंस देखते हैं, एंड अगर मुझे एज अ फैकल्टी नहीं पता था, तो प्रॉबेबली जो ग्रेजुएट करके 4 साल यहाँ रह के गया होगा उसको भी नहीं पता होगा। 2-3 चीजें नस्ट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक ये कि हमारे पास 60% स्टूडेंट जो है वो फाइनेंशियली चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आ रहा है, लोअर मिडिल इनकम स्ट्राटा से आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो एजुकेशन को इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल। 17% स्टूडेंट्स एवरी इनटेक में हमारे पास आते हैं जिनकी टोटल नेट फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 40,000 पाकिस्तानी रुपीज में होती है। अब यूजुअल पाकिस्तान का फैमिली साइज 6 लोग है, उसमें एक आध बूढ़ा बुजुर्ग होता है घर में जिसका मेडिकल भी चल रहा होता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज यहाँ इस तरह की हैं नहीं कि फैमिलीज के लिए आसान होता है ये सब कुछ। ऐसे में एक बच्चे के लिए 20,000 रुपए पर मंथ की फीस देना, हालांकि जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करो तो बहुत ही रिलेटिवली कम फी है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जिसको सपोर्ट चाहिए, तो हमने इस प्रोग्राम को लॉन्च इसलिए किया था क्योंकि यूनिवर्सिटी was already doing a lot. नास्ट अपने SGR से हर साल 100-150 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता था, बट सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज्यादा था। रिक्वायरमेंट हमारी एक इनटेक में 400-450 स्टूडेंट्स की थी, इंस्टीट्यूट के पास 100-150 का पोटेंशियल था। So there was a huge gap. So we had two options. एक ये थी कि बिकॉज मेरिट पे, इंटरेस्टिंग बात एक और नस्ट के बारे में ये कि हमारा 4% एक्सेप्टेंस रेट है, सो स्टूडेंट तो बहुत आ रहा था। तो अगर हमारे पास ऑप्शन 1 ये है कि पहली मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आया, आपके पास पैसे नहीं है, आप छोड़ जाएं, कोई और आके वो सीट ले लेगा। सो मेरिट लिस्ट नंबर 25 तक भी हम जा सकते हैं, 30 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट पॉपुलेशन बहुत, 60,000 बच्चा अप्लाई कर रहा है एडमिशन के लिए। लेकिन ये ऑप्शन जो था, इसमें हो ये रहा था कि हम बेस्ट ब्रेन को अपने क्लासरूम तक नहीं पहुंचा सकते थे। ये उस बच्चे के साथ ज्यादती थी जिसने प्राइमरी किया, हाई स्कूल किया, मिडिल किया, और फिर यहाँ तक पहुंचा है, हमारे पास आ गया, और बहुत मुश्किल से आया है, बहुत बैकग्राउंड उसका मुश्किल था। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि वी रीच आउट एंड वी फाइंड वेज, वी क्रिएट वेज टू सपोर्ट दी स्टूडेंट्स। आई गिव क्रेडिट टू द लीडरशिप ऑफ नास्ट कि उन्होंने इस चीज को, दे डिसाइडेड द डिफिकल्ट पाथ। उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए लेट्स जनरेट स्कॉलरशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज।
उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें कि इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाए। 2015 में वी लॉन्च नीड इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव हमने अलमनाई के साथ मिलकर लॉन्च किया। सो 22 मई था, उस दिन हमने एक इवेंट किया जिसमें हमने ग्लोबल अलमनाई के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑनलाइन लिया, लोकल अलमनाई ने हमें ज्वाइन किया, कुछ कम्युनिटी को इनवाइट किया, एंड वी लॉन्च नीड इनिशिएटिव व्हिच वाज अ प्रॉमिस कि अगर मेरिट के ऊपर क्वालिफाई करके किसी भी स्टूडेंट का नस्ट में एडमिशन हो जाएगा, नस्ट विल बी नीड ब्लाइंड फॉर दैट स्टूडेंट। हम उसको उसके फैमिली पॉकेट साइज की वजह से नस्ट छोड़ के नहीं जाने देंगे। तो ये हमारा प्लेज था कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो क्वालिफाई कर ले। जब उसने क्वालिफाई कर लिया है तो उसके पास पैसे नहीं है, ये चीज इररेलेवेंट होगी उसके क्लास में बैठने से। एंड शुरू में लगता था बहुत ही एक मुश्किल ख्वाब है, मैं खुद बहुत परेशान थी क्योंकि वैसे ही फंड रेजिंग एक बड़ा मुश्किल KPI होता है। और फिर ये बर्डन भी साथ होना कि अगर मैं फेल हो जाऊंगी तो इट्स नॉट जस्ट मी फेलिंग, किसी स्टूडेंट को नो करना पड़ेगा, तो एक पूरी फैमिली की ड्रीम्स आप साथ लेके डूब जाएंगे क्योंकि यू फेल्ड एट द जॉब। बहुत ही उस वक्त स्ट्रेसफुल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट एन इजी जॉब टू जंप इनटू। लेकिन उस वक्त ना अलमनाई ने बहुत हेल्प किया, मतलब आई नेम नेम्स, तो देयर वाज शिराज बशीर भाई फ्रॉम US, उनको मैंने कॉल पे लिया, उन्होंने हमें इस सिस्टम को गाइड किया बनाने में। उस वक्त की अलमनाई एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे हेल्प्ड अस। अपनी यूनिवर्सिटी के अपने बिजनेस स्कूल के अलमनाई थे सीनियर, उनसे बात की, उन्होंने कहा कर लेंगे, कुछ ना कुछ निकालते हैं प्रोसेस। उस सारी हेल्प से कुछ बन गया खदोखाल उस प्रोग्राम के। और पहले ही साल हमने 452 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स अरेंज कर लिए, which was 100% of students with demonstrated financial need. जिसने अप्लाई किया, we somehow managed that. और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सफर चलता गया, कारवान बढ़ता गया, उसको हम स्ट्रैटेजी बनाते गए, एंडाउमेंट बेस्ड मॉडल डिजाइन किया, एनुअल फंड का मॉडल डिजाइन किया, पूरा ज़कात बेस्ड मॉडल डिजाइन किया। फिर हमारे पास इसके बाद डेफरमेंट सिस्टम है फी का। फिर हमारे पास बैंक्स की लोन स्कीम्स हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो हमने वो सिस्टम आगे चलाते चलाते इस वक्त एज वी सिट हियर सना, देयर आर सम 3500 स्टूडेंट्स जो नस्ट के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड होंगे, जिनकी फीस जो है अब वो ये डिपार्टमेंट चला रहा होता है या डिपार्टमेंट के थ्रू आ रही होती है, जो सपोर्ट से पढ़ पाते हैं। और अब तक क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट्स यहाँ से इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट होकर मार्केट को ज्वाइन कर चुके हैं, सो वी आर नाउ सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दोज एफर्ट्स। वो जो एक स्टूडेंट सब्जी मंडी में उसके अब्बू ट्रक अनलोड करने की जॉब करते थे सुबह सुबह और सब्जी मंडी में फ्रूट बेच रहे थे, वो बच्चा हमारे से एक MNC तक पहुंचा, और उस बच्चे की लाइफ चेंज तो हुई ही है। उसके 4 बहन भाई जो है वो गांव से शहर मूव हो गए और उन्होंने अच्छे स्कूल्स ज्वाइन कर लिए। तो वो एक पूरी फैमिली हमने देखा ट्रांसफॉर्म हुई, और ऐसी बहुत सारी फैमिलीज। एजुकेशन बहुत बड़ा इनेबलर है। तो जैसे ही हमने डिसीजन लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी इज अ वेरी गिविंग कम्युनिटी, तो दे स्टेप फॉरवर्ड एंड दे स्टार्टेड हेल्पिंग अस एंड द प्रोग्राम्स रनिंग नाउ। अलमना पार्टनर काफी ज्यादा हो गया, इसमें बढ़ता गया। इन USA वी आर नाउ अ 501c3, वी आर अ 501c3 इन UK एज वेल। तो वो कुछ प्रोसेस भी डेवलप हुए, कुछ हमने भी सीखा अपनी गलतियों से, अपनी एक स्ट्रगल में आप सीखते भी हैं। वो सीखते सीखते कुछ थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम कहीं पहुंचता पा रहा है, और एंडाउमेंट पे खास तौर पे अब हमारा फोकस है, बिकॉज वहां पे डोनर फिटीग खत्म हो जाती है। सो हमारा इस वक्त टारगेट ये है कि वी वांट टू मेक मिनिमम 400 सीट्स फ्री फॉर स्टूडेंट्स एट नास्ट, एंड सिंपल मैथ्स, तकरीबन 3 मिलियन पाकिस्तानी पे एक सीट फ्री हो जाती है। सो वी आर ट्राइंग टू रेज अ सर्टेन नंबर ऑफ मनी के जिससे हम कम से कम 400 सीटें ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा हमेशा के लिए नस्ट में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिक्स हो जाएं जो मेरिट पे क्वालिफाई करते हैं बट अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते। तो ये मिशन जारी है, देखें कारवां बढ़ता जा रहा है, अल्लाह तबारक तआला बरकत डाल रहे हैं, और इस सफर में बहुत सारे अच्छे लोगों से आपके ताल्लुकात भी बनने शुरू हो जाते हैं। ये एक और फायदा है इस किस्म की जॉब का, बहुत सारे ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन होता है जो दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं। गिविंग सोल्स की एक अपनी बहुत पॉजिटिव वाइब होती है, so when you start connecting with them, it's always enriching for the soul as well. I speak a lot, so you'll have to cut me when I No, I don't want to interrupt you at all. I wanted to say thank you so much for sharing all that, because आइडिया हो भी तो इतनी डिटेल में किसी को नहीं पता होता कि क्या क्या हो रहा है। हमें नजर आ रहा है आपके एफर्ट्स हैं, माशाल्लाह, you're doing this,
like we talked the other day कि apparently लगता है you are traveling a lot, you're going to US, now you're going to Dubai and everything, but उन efforts के बाद हमें fruit क्या मिल रहा है, I think I don't have the words to actually appreciate it enough, because ये तो बहुत बड़ी बात है what you just said. आपने जो specially इस चीज को when you mention कि क्या goal था start करने से पहले, honestly on the surface it sounds very unrealistic for a mother of very young kids who's already involved with so many things. Just thinking कि हाँ ठीक है जो भी आएगा स्टूडेंट अगर नहीं हो रहा फाइनेंशियली तो हम कर देंगे, जो पहले बिल्कुल भी नहीं होता था. हाउ इज दैट इवन पॉसिबल टू थिंक अबाउट इट, टू टेक दैट चैलेंज? तो माशाल्लाह बहुत आला काम कर दिया आपने वहां पे. एंड नाउ दैट यू आर सेइंग कि वो चल रहा है इन फ्यूचर एंड यू गॉट द सपोर्ट. लेकिन लाइक यू सेड हमारी नेशन गिविंग नेशन है, डेफिनेटली हम बहुत खुल के चैरिटी करते हैं, बट देयर हैज टू बी अ प्रोसेस. अगर कोई भी बैठा है जो चैरिटी करने को तैयार है बट उसे ये नहीं पता कि किस तरह हो रहा है, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं और सिर्फ फाइनेंस की वजह से रुक रहे हैं, तो that's an amazing system you have started there. Hands down, respect, mashallah, mashallah. We are very grateful that we have people like you. Thank you so much, Sana. You're very kind in your praise. Honestly, यहाँ पे भी मुझे टीम अच्छी मिल गई. So what I did was I raised a very good team. एंड अब मैं उनको कहती हूँ तुम लोग काम करते हो और मेरी तारीफ हो रही होती है, तो वैसे सारा क्रेडिट मैं उनको दूंगी. दे आर रियली ब्रिलियंट पीपल. एंड व्हाट वी डिड वाज हमने इनिशियली बहुत फोकस किया है प्रोसेस के ऊपर. फॉर 1 गुड ईयर हमने फंड रेज नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ फंड रेजिंग प्रोसेसेस डिजाइन किया है. बिकॉज यू वेरी राइट सना, जब तक आपके पास सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, इन प्लेस ट्रस्ट नहीं आ सकता. लोग देना चाहते हैं लेकिन देने के लिए उनको ये ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि आपके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो उस पैसे के एक एक पैनी का हिसाब रख सकता है, वो राइट बंदे तक पहुंचेगा, उसका इम्पैक्ट किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट हो रहा होगा. तो वो सिस्टम हमें जरा टाइम लगा. रजिस्ट्रेशन, पीसीपी रजिस्ट्रेशन, एक पूरा चैरिटी हमने पूरा नस्ट ट्रस्ट फंड रेज किया है जो कि पूरे एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड है और वो इस सारे प्रोसेस को मैनेज करता है. वी नीडेड एन एंडाउमेंट मैनेजमेंट कमेटी जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स को सुपरवाइज करेगी. सो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस इन प्लेस हो गया, टीम बन गई, अलमनाई ने बाय कर लिया आइडिया, कम्युनिटी को पसंद आ गया कॉन्सेप्ट, लोग देना चाहते हैं, करना चाहते हैं. अभी बहुत डायर नीड भी है पाकिस्तान के लिए हायर एजुकेशन पे फोकस करने की. हमारा टर्शरी एजुकेशन एक्सेस रेट पाकिस्तान का 10% है, ग्लोबल एवरेज इज 37.8%. तो हमारे लिए हम अपने हमसाए मुल्कों की एग्जांपल देते हैं. इस वक्त दुनिया की हर बड़ी कंपनी के टॉप पे कोई ना कोई इंडियन बैठा हुआ है. सो दे हैव रियली फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड दे हैव रीच्ड सम प्लेस देयर. कंट्रीज ने अगर प्रोग्रेस करना है तो दे हैव टू राइज टू दिस चैलेंज कि उनको अपने हायर एजुकेशन बिल्ड करना पड़ेगा. प्लस आई ऐड है कि नास्ट एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की प्रीमियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मोस्ट के अंडर 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक हम हैं और एक कॉमसेट्स. हमारे चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हैं. आप एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी हैं और आप एक R&D के ऊपर फोकस यूनिवर्सिटी, रिसर्च लेड यूनिवर्सिटी बनना चाहते हैं. ये 2 चीजें आपस में एक पैराडॉक्स क्रिएट करती हैं. पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के पास कभी ऐसे फंड्स नहीं हो सकते कि वो R&D करेगी, कहीं भी नहीं होते, दुनिया में हो ही नहीं सकते. सो R&D करनी है और पब्लिक के पैसे पे करनी है, टैक्स पेयर मनी पे करनी है, ये तो नहीं होता. इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट चाहिए होती है. अब ग्लोबली यूनिवर्सिटीज, आप लोगों अलमनाई तो खैर बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए हैं. ग्लोबल यूनिवर्सिटीज कम्युनिटीज बनाती हैं. आप MIT देख लें, आप हार्वर्ड देख लें, आप स्टैनफोर्ड देख लें, लुक एट एनी बिग यूनिवर्सिटी अराउंड द ग्लोब. गवर्नमेंट के पैसों पे नहीं चलती. तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक यूनिवर्सिटी बनाएगी जो रिसर्च करेगी, जो इनोवेशन इंडेक्स पे हम अब कहीं 100 पे आए हैं, 100 का नंबर को क्रॉस किया है हमने. दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, बहुत ज्यादा इन एरियाज में फोकस की जरूरत है. पाकिस्तान को नस्ट की जरूरत है इस वक्त नेशन बिल्डिंग के परस्पेक्टिव से. हमें इस इंस्टीट्यूट को बनाना है और इसलिए ये एक आप इसको कह सकते हो ये एक बहुत बड़ा एक नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है. नंबर 1, ढंग का अच्छा ब्रेन पाकिस्तान जो पैदा कर रहा है उसको उस लैब तक एक्सेस मिले. नंबर 2, वो लैब एग्जिस्ट करती हो जो R&D कर सकती है. आपके पास सुपर कंप्यूटर्स होने चाहिए, आपके पास R&D के मसल्स होने चाहिए, आपके पास. अब पाकिस्तान का पहला SEZ बना है, नस्ट ने पाकिस्तान का पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क बनाया है. 72 ईयर्स लग गए हमें पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क को इनॉग्रेट करने में. तो एज अ नेशन हमें थोड़ा सा पेसअप करने की, एक वर्ड हम यूज करते होते हैं लीप फ्रॉग करना, हमें लीप फ्रॉग करने की जरूरत है. अभी हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसेस से नहीं आ सकते.
वो जो जैक हमने लगाना है ना तरक्की करने के लिए, वो तब लगेगा जब कम्युनिटी बाय करेगी कि हायर एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अब यूजुअली यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट उनके अलमनाई करते हैं। हम बड़ी यंग यूनिवर्सिटी हैं, वी आर जस्ट 30 years old, यानी उम्र में मेरे से बहुत छोटा है नास्ट। अब एक 30-year-old यूनिवर्सिटी का अलमनाई बहुत यंग अलमनाई बेस है। अलमनाई रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी क्योंकि यूनिवर्सिटी के मेरा ऑफिस देखता है, उसके अपने इनहेरेंट चैलेंजेस हैं। बहुत एज तक का जो अलमनाई है आपका, वो अभी गिविंग की बजाय टेकिंग के रोल में होता है। उसको अपने ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, उसको जॉब हंट में सपोर्ट चाहिए, उसको जॉब करियर एडवांसमेंट के लिए कोर्सेज में सपोर्ट चाहिए। वो वहां नहीं पहुंचता कि वो गिविंग बैक के लिए एंगेज किया जा सकता। बहुत एक छोटा सेगमेंट है अलमनाई का फिलहाल जो उस उतना रीप्ड मार्केट में मौजूद है जो गिव बैक कर सकता है। फिलहाल जिस प्रोग्राम में हम उनको एंगेज कर सकते हैं वो स्टूडेंट सपोर्ट प्रोग्राम है, जहां हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि कम से कम हमारे साथ मिलकर ये इंश्योर कर दें कि हम पाकिस्तान के बच्चों के लिए फैसिलिटेट कर देंगे यूनिवर्सिटी तक आने में थ्रू स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लेकिन व्हेन वी आर एंगेजिंग कम्युनिटी तो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज देन वी नीड इन्वेस्टर्स, we need somebody to come and build a hospital because we want to start a degree in medical science. We need a JV partner for the SEZ. हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए लैंड मिल गया है, बट वहां कंस्ट्रक्शन करनी है, टावर्स बनाने हैं। सो तो उस ग्रोथ के लिए पार्टनर्स 2800 to 2900 स्टूडेंट लेते हैं हम एक यूजी की इनटेक में, लेकिन हमारा पोटेंशियल है कि हम ये नंबर बढ़ा सकते हैं। वो नंबर बढ़ाने के लिए हमें फैसिलिटीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी सपोर्ट चाहिए। सो जो प्रोग्राम के फेसिट्स हैं जो इसके ऊपर काम है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, वो सिर्फ स्टूडेंट स्कॉलरशिप तक नहीं है। और ये एक मुझे ये जाती तौर पे लगता है कि ये जॉब नहीं, ये हमारी वॉलंटियर वर्क भी नहीं, एक नेशन बिल्डिंग है। पूरे पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त इस सबकी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। लाइक आई वाज सेइंग कि मुझ जैसे नालायक जो बाहर आके बैठ गए हैं उनको नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। और अगेन जिन प्रोसेसेस की आपने बात की है दे आर सो इम्पोर्टेंट। हमें जब तक नहीं पता होगा वेयर कैन बी पुट इन मनी टू हेल्प समवन, और जो जो आपने चीजें लिस्ट डाउन की हैं, इट्स नॉट जस्ट एक बच्चे के फाइनेंशियल वो नहीं पूरा कर सकता अपनी फीस तो हमने उसको हेल्प कर दी, इट्स अ होल सिस्टम देयर। और नेशन बिल्डिंग की आपने जो बात की है दैट इज सो इम्पोर्टेंट। इन इंटरव्यूज पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम जो देख रहे हैं इंटरव्यूज, उनको मैं नहीं जानती और वो कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। तो लेटली एक कमेंट डॉक्टर गिलानी के इंटरव्यू पे भी मैंने पढ़ा कि व्हाई डोंट यू आस्क योर गेस्ट कि पाकिस्तान में कोई सीईओ नहीं है गूगल का, कोई बड़ी कंपनीज का, अमेजॉन का, थिंग्स लाइक दैट जो हमें इंडियन नजर आते हैं, जो आपने अभी अभी जो बात आपने पॉइंट आउट की। वी नीड टू नो दीज थिंग्स बिकॉज ऑन सर्फेस ये कहना बहुत आसान है, बट वेयर डज इट स्टार्ट? हमने एफर्ट पुट इन करने कहाँ पे हैं? वो लोग कहाँ हैं? कहाँ से हम कितनी मारिया कादरी लाएंगे कि ये चीज बन सकेगी? ऑनेस्टली, बिकॉज वी हैव टू नो दैट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। इट्स नॉट लाइक सिंपली कहना कि हाँ पता नहीं नस्ट वैसे तो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पता नहीं वो नस्टियंस कहाँ जा रहे हैं बिकॉज वी नो कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बट नेशन को उठाने के लिए उनको जो 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 चाहिए, जो एफर्ट्स चाहिए, दे आर डिफरेंट। और नास्ट बीइंग यंग, यस, आई रिमेंबर शराज भाई ने मुझसे भी ये बात मेंशन की थी कि हार्वर्ड इज की एज हम कंपेयर नहीं कर सकते, और वहां पे अब यू डोंट हैव टू हैव अ प्रोसेस, यू डोंट नीड अ थिंग, समबडी नीड्स हेल्प, ही गेट्स द हेल्प, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ वहां पे एफर्ट नहीं चाहिए होता। उस स्टेज पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी हेल्प ज्यादा चाहिए होगी, हमें सब कुछ करना होगा जो आप कर रही हैं। आपने बहुत जबरदस्त बात की और हमें बहुत कुछ बताया है इन लोगों के बारे में जो आपको सपोर्ट करते रहे हैं, फ्रॉम द सीनियर एलुमनाई टू द टीम यू हैव विद यू, और एनबीएस से भी जो आपको बहुत अच्छे लोग मिले साथ। बट आई वांट टू आस्क, कुछ तो चैलेंजेस भी होते होंगे, कुछ तो लोग होते होंगे जो इस चीज को अपोज भी करते हैं, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ गेम। आई डोंट थिंक सो कोई भी जॉब ऐसी होती है कि आप बस जो कर रहे हैं आपको कांस्टेंट सिर्फ सपोर्ट मिल रही है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा या कुछ, और उसको हैंडल करना भी एक चैलेंज होता है। हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? चैलेंजेस होते हैं सना, गिविंग के पर्सपेक्टिव से लैंडस्केप पे हायर एजुकेशन इतनी प्रोमिनेंट है नहीं, पाकिस्तान में ट्रेंड नहीं है हायर एजुकेशन की सपोर्ट का। और फिर ये कि पाकिस्तान में नीड भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे भूख इतनी है, अफलास इतनी है, इलाज नहीं हो रहे, अस्पताल मौजूद नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंच पा रहे। तो एक तो सबसे पहला हमें प्रॉब्लम ये आया कि CSR प्रोग्राम्स जो कॉर्पोरेट्स के थे या जो डोनर्स थे, उनके अलाइन वो ज्यादा थे और प्रोग्राम्स के साथ, और हायर एजुकेशन को पैसे दो ये किसी को समझ नहीं आती थी। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हायर एजुकेशन लग्जरी है,
वो नेसेसिटी नहीं है। Yeah. और बहुत सारी नेसेसिटीज मीट नहीं हो रही है, तो हम लग्जरीज पे कैसे स्पेंड कर सकते हैं। आई थिंक हायर एजुकेशन इज अ लग्जरी। इसके बाद लड़कियों को पढ़ाएं। बहुत सारे पाकिस्तान में आपको ऐसे डोनर्स मिलेंगे जिनको लगता है लड़कियां पढ़ के शादी कर लेती हैं, पैसे जाया हो जाएंगे, वो वाले प्रॉब्लम्स थे। एक तो फंड अवेलेबल नहीं थे, CSR प्रोग्राम्स डायरेक्टेड नहीं थे एजुकेशन के लिए। फिर एक हमारा ओवरऑल एटीट्यूड प्रॉब्लम भी होता है। अलमनाई कोई अप्रोच की, बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा अब कुर्बानी की खाले बीमारियां हमारे पास। लोग छेड़ते थे, कुलीग्स ने मुझे चंदा मांगने वाली आंटी कहना शुरू कर दिया। I remember that. तो ये एक फन बन गया कि ये चंदा इकट्ठा करते हैं और इतना पढ़ लिख के तुम्हारा ये करियर चॉइस था। तो वो शुरू में कुछ कुछ हर्डल्स आए, बट दे वर फनी मोस्टली। आई मीन इस किस्म की जो बातें थी वो ज्यादातर हमने उसको कोई साथ खास सीरियस नहीं लिया, उन्होंने हमें खास डिमोटिवेट भी नहीं किया, बिकॉज अच्छे लोग बहुत मिल गए। एक और बड़ा चैलेंज है जिसका जिक्र हम यूजुअली नहीं करते, वो चैलेंज ये है कि मीडिया कवरेज तो मैं उसको नहीं कहूंगी, मगर शोहरत के लिए बड़े बड़ी अनाउंसमेंट्स कर देने का भी बहुत रवाज है। सो आप कॉल फॉर फंड करते, आपने एक स्टूडेंट की फीस देनी है, कल सुबह वो फीस आपकी सबमिट होनी है, टाइम बिल्कुल नहीं है, फाइनेंस की तरफ से प्रेशर है, बच्चा प्रेशर में है, आप एक स्टेटस भी लगाते हो, नीचे कोई बंदा लिख देगा कि 100% मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद वो अपना फोन नंबर नहीं शेयर करेगा। अब ऑन सोशल मीडिया उसने अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, वो फंड कभी आपसे रिकवर होता है कि नहीं होता। ये तो मैं बहुत छोटी एग्जांपल दे रही हूँ, कभी कभी मिलियंस के लोग आपके इवेंट पे आएंगे और खड़े होकर अनाउंस कर देंगे, और इसके बाद आपसे वो रिकवरी नहीं होती है। लेकिन ये चैलेंज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है या हमारे प्रोग्राम का नहीं है, ग्लोबली ही प्लेज एंड रिकवरी की रेशोज में फर्क होता है। सो हम अपने प्रोग्राम को डिजाइन ऐसे रखते हैं कि हमारे पास बैकअप फंड होने चाहिए। मैंने एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर लिया और डोनर डिफॉल्ट कर गया या डोनर गायब हो गया, तो मैं क्या करूंगी। तो ये चैलेंजेस आई थिंक है, और ओवर टाइम कुछ हमने भी लर्न किया, कुछ डोनर्स ने भी लर्न किया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें कुछ रिजॉल्व होने लग गई हैं, मसले हल हो रहे हैं ज्यादा। चलिए माशाल्लाह, और it must take a lot of positive attitude, you know, to overlook all of that. कि कोई आपको somebody is bringing you down, somebody is saying things like that, और आप demotivate ना हो and you still keep on doing the positive thing, that's a huge thing. So mashallah, mashallah, I'm so impressed seriously, because knowing myself as a person, मैं शायद बहुत defensive हो जाऊँ और मैं सोचूं कि am I doing the right thing, ये तो ठीक नहीं हो रहा। ये तो काफी कमेंट्स मैंने खुद भी देखे हुए हैं, जो बंदा देख के एकदम से इम्प्रेस होता है, वाह मारिया ने अभी पोस्ट किया था एंड सो मेनी पीपल आर देयर एंड टेलिंग यू कि बस मैं अडॉप्ट कर लूंगा, मैं पे कर दूंगा, एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट फुलफिल दैट। सो बहुत लोग भी हैं एंड वी बैंक ऑन देम। असल में आपको फिर देखना पड़ता है पॉजिटिव साइड के ऊपर, यू जस्ट कैन नॉट लेट अ फ्यू पीपल पुल यू डाउन। फिर बहुत सारी ऐसी जगह भी आती हैं जो चैलेंज जॉब का बन जाती हैं। इंस्टीट्यूशन की अपनी पॉलिसीज हैं, इंस्टीट्यूशन की अपनी एक विजन है। जब आप लोगों के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, और वो भी एक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट इन इटसेल्फ एक बड़ी चैलेंजिंग जॉब है। स्टेक होल्डर को किसी और किस्म की रिटर्न चाहिए होगा, डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन कुछ और ऑफर कर सकता है। यू हैव टू फाइंड दैट मैरिंग नोड कि कहाँ पे दोनों का कनेक्शन हो सकता है। हमारा अपना इंस्टीट्यूशन बिकॉज उतना ओपन डोर तो है नहीं, हमारे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हैं। ऐसे में लोगों को बहुत ओवर तरीके से हम वेलकम करके गेट्स ओपन छोड़ के, यू नो, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, और वो वी आर इन इट फॉर आउटकम्स नॉट द इनकम। इनकम भी वैसे एक चैलेंज है, लेकिन हम आउटकम पे फोकस्ड हैं, तो सब कुछ अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा सा रिजॉल्व हो रहा है। इट्स अ फन जॉब एक्चुअली, आसान है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है कि आप इसको एज फन जॉब कह रही हैं, एंड लाइक आई सेड, आई थिंक वो रिफ्लेक्ट होता है because it sounds like it's your true calling, you know, with something that tickles your fancy, as young people would say these days, कि आपको वाकई enjoy करती हैं इस चीज को करना। So that has really worked out for NAST, for Pakistan, and I hope कि आपका सारी मोटिवेशन ऐसे ही रहे और आपको इंशाल्लाह हेल्प भी मिलती रहे इन सब चीजों के लिए। चले थोड़ा सा हम आते हैं आपके टाइम के लिए, जिधर हम आपके काम के अलावा योर फन मेमोरीज एट नास्ट, कैन बी फ्रॉम योर स्टूडेंट लाइफ, कैन बी फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज जो आप नास्ट में काफी टाइम गुजारा आपने, कोई फन मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगी, स्पेशली टीचर्स को याद करें। लेकिन अच्छी चीजें बहुत ज्यादा हुई। इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलिएशन इसलिए है कि इंस्टीट्यूशन ने बहुत मेरी जिंदगी को बहुत एनरिच किया है। नास्ट में बहुत अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात रही है,
स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पे जो कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी है और उसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। एक दिन मैं बैठी हुई थी और एकदम से मुझे कॉल आई, इंटरनेशनल नंबर था। आई पिक्ड अप द कॉल, तो आई डिडंट इवन रिकॉग्नाइज कौन है, लेकिन एक स्टूडेंट था और वो मुझे कह रहा था कि मैम मैं मक्का में हूँ और खाना काबा के सामने बैठा हूँ और मेरी नजर अल्लाह के घर पर है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ और मुझे ख्याल आया कि कुछ और लोगों ने मेरी जिंदगी में कोई रोल प्ले किया, उनके लिए मैं दुआ मांगूं, तो आप मुझे बहुत याद आ रही थी। तो मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं आपके लिए दुआ कर रहा था, तो मैंने सोचा आपको सलाम किया जाए और आपसे पूछूं आपको कोई दुआ करानी है अपने लिए। तो वो एक बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग थी। या एक स्टूडेंट बाहर पीएचडी करने गए हुए थे, स्टूडेंट नहीं अलमनाई, उनको खबर मिली उनकी अम्मी फौत हो गई हैं, तो he called me and I picked up the call and he was crying and मुझे समझ नहीं आई कौन बोल रहा है। पहले 2 दफा मैंने हेलो किया, फिर मुझे लगा somebody is crying, तो मैं रुक गई। And उसने कहा मैम I lost my mom and he started crying and I spent some good 30 minutes with him on phone, but it was very overwhelming कि of all his friends, of everybody around him, he decided to make that important call to me। यूं लगा जैसे कुछ जिंदगियों में कुछ जगह बनाई है अपनी, कुछ लोग हैं जिंदगी में, लोग कमाए हैं। तो इन 14 सालों में बहुत लोग कमाए हैं। वो जो है, अब मेरी ट्रेवल इंटेंसिव जॉब है, मुझे किसी भी शहर में सना ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। 64 कंट्रीज में नस्ट का लंबा नेटवर्क है और इतना प्यार मिलता है, इतना फैमिली है ये, इतनी, मैं कहीं जाके वो फील ही नहीं होता है कि अब यहाँ आ गई हूँ अब क्या करूं। अपने दोस्त हर शहर में अपने लोग हैं, हर तबके में, हर जगह में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ तो अपने लोग हैं। और वो जो अपनायत मुझे नस्ट के लोगों से मिलती है, वो जो इतना प्यार मैंने इकट्ठा किया है, मुझे लगता है ये सारा का सारा इट मेक्स द जर्नी वर्थ वाइल। वो लगता है कि कुछ कमाया है जिंदगी में, लोग कमाए हैं। So ये बहुत बड़ी चीज है अगर आप लोग कमा लें तो, चाहे थोड़े हों चाहे ज्यादा हों, लेकिन कुछ लोग अगर खुलूस के साथ आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेते हैं, आपके लिए दुआ करने वाले हाथ हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी की पुरखुलूस दुआओं में होना। मुझे लगता है मुझे जिंदगी में ये मिला है। This is very heartwarming to know. Mashallah, mashallah. As in, of course, I already have an idea. I think most of the Nastians have an idea how well connected you are to people. You have always been there. मैंने as student देखा है आपको, मतलब जब आपने faculty join किया था, how comfortable it was to just to go to your office and share any. I mean, it was always so comfortable, and you are a comfortable person to be with. So I think that goes a long way. ये आपके personality का बहुत बड़ा factor है जिसने माशाल्लाह help किया है आपको भी, इस profession को भी, और बहुत ज़्यादा लोगों को भी as a return. So mashallah, I'm so glad to know all of that. I really enjoyed this interview. बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि again पता होता है इसमें से बहुत सी बातें मुझे already पता थी, लेकिन इस डिटेल में हमने कभी नहीं बात की उसको, एक एक चीज को बारे में समझना कि how exactly it happens, what exactly are you doing there. That takes a lot of courage, lot of commitment, lot of time with such young kids. आपके माशाल्लाह छोटी छोटी बच्चियां भी पूरी intellectual हैं. I know, I have seen their videos and their quotes and all, and yeah, you can just tell अच्छा ये फहीम भाई की बेटी है, अच्छा ये मारिया की बेटी है, they're just like that. So माशाल्लाह, I'm really glad it's working your way. और बहुत लोग हैं जी आपके लिए इंशाल्लाह दुआएं करने वाले, इंशाल्लाह टाइम के साथ बढ़ते ही चले जाएंगे। किसी टीचर को याद करना चाहेंगी? मैम जीजे, ऑफ कोर्स, अल्लाह ताला उनका जन्नत दे। इट वाज सो सडन, still part of me is in denial. मैम जीजे बहुत बहुत क्रिटिकल, आई थिंक वो भी, मैंने ये जो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना था, शी वाज एन इंस्पिरेशन इसमें। मेरी जब शादी हुई हमारी, मेरी और फहीम की, तो फहीम का रिश्ता इंटरेस्टिंगली मैम जीजे वाज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली और उन्होंने मुझे रिंग पहनाई, एक रिंग लेकर आई, उन्होंने ये एंगेजमेंट किया। तो शी वाज दैट इन्वॉल्व्ड विद स्टूडेंट्स एंड देयर लाइफ, बहुत ख्याल करती थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अगला सफर बहुत आसान रखे। मेरा ख्याल है बिजनेस स्कूल में बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, एक दूसरे से बहुत सीखते थे, टीचर्स बहुत हमारे क्लोज होते थे, हमारे मसाइल में इंटरेस्ट लेते थे। वो सारी चीज जो है उससे हमें बड़ी हेल्प भी हो जाती थी। अभी तक सनोखे सर्वर जहाँ मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं। मैम असफिया हैं,
वो अभी तक वही हैं, और वो भी उनका एक अपना पढ़ाने का भी अंदाज और एक उनकी कंपेनियनशिप बहुत जबरदस्त किस्म का। वो बिजनेस स्कूल को याद करो और सरफराज चाचा को याद ना करो तो ज्यादती होती है। यस अभी सरफराज तक भाई। सरफराज चाचा वाज द फोटोकॉपियर एट बिजनेस स्कूल, हमारे टाइम से वो वहां है, और मेरा ख्याल है वो हर स्टूडेंट को जानते हैं, हर Oh, एक के साथ वो। अभी भी आप बिजनेस स्कूल जाए तो वो आपको फ्री की पेप्सी जरूर पकड़ाते हैं दरवाजे से, तो पीछे से आते हैं कि मैम ये जूस पकड़ लें तो आपको बहुत प्यारे लगते हैं। तो बिजनेस स्कूल इज होम, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स, अपनी पुराने क्लास फेलोज, सबके साथ एक अच्छा ताल्लुक है। आई एम ग्लैड कि अलुमनाई नेटवर्क इतना ग्रो कर गया है कि अब लोग कनेक्ट बैक करते हैं। और तुम्हारे प्रोग्राम के थ्रू ही आई वुड लाइक टू टेल एवरी नास्टियन दैट Nast is home to you. So whenever you're coming to Pakistan, you too, Sana, do drop by. Would love to have a cup of tea with you at the alumni office. आपका इंस्टीट्यूट है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, आप कांस्टेंट है। और मैं अलुमनाई को कहती हूँ अक्सर कि दो चीजें हैं जिनसे हम कभी भी स्केप नहीं कर सकते हैं। एक पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, वो अब आप हैं पाकिस्तानी, वो आपका ग्रीन पासपोर्ट आपको डिफाइन करेगा, वो आप रहेंगे जहां भी चले जाएं, जितने मर्जी नेशनैलिटीज ले ले बंदा, पाकिस्तानी है आप बेस पे। दूसरा, आपके सीवी में नस्ट का नाम आ गया है तो ये भी कहीं नहीं जा रहा, ये आपकी उम्र भर का कनेक्टिविटी है। दोनों चीजों को ओन करें, और ओन करने का एक पार्ट ये है कि दोनों करने के लिए एफर्ट करें। पाकिस्तान के लिए भी आप क्या कर सकते हैं हर वक्त जरूर सोचा करें, और नस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं। हमने एक स्टेज सेट किया है, इस पर बहुत कुछ किया जा सकता है। आप अगर स्टार्टअप रन करना चाहते हैं, कम बैक होम, विल हेल्प यू, वी हैव एन SEZ, वी हैव स्पेस, वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क हियर। आप पढ़ाना चाहते हैं, वी नीड यू। आप करिकुलम में कुछ एनहांस करने में हेल्प कर सकते हो, प्लीज हेल्प अस। कोई नया कोर्स है, कोई नई टेक्नोलॉजीज है, नए टूल्स हैं जो आपने सीखे हैं और आपको लगता है कि पाकिस्तान की यूथ को सिखाए तो अच्छा कुछ हो सकता है, प्लीज लेट अस नो। आप फुल टाइम फैकल्टी के तौर पे ज्वाइन करना चाहते हो, आप कुछ भी, आपके पास कुछ है देने के लिए पाकिस्तान को, हमारे पास एक चैनल है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। आप मेंटोर करो, आप गेस्ट लेक्चर के लिए आ सकते हो। और अगर ये सब करने के साथ एक काम और करो कि ज़कात, मैं फंड रेजिंग कॉल नहीं कर रही हूँ बिल्कुल, बट अपनी कर सकती हैं आप। गिविंग का, जो भी आपका पोर्टफोलियो है गिविंग का, उसमें कुछ ना कुछ शेयर जरूर अपने अल्मा मैटर के लिए रखें। छोटे से स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट, एक आध स्टूडेंट की जिंदगी बदलने के लिए एक स्टूडेंट अडॉप्ट कर लें। 2.5 लाख सालाना, दैट्स द टोटल कॉस्ट जो एक डिग्री के लिए हमें चाहिए होती है, उसको आप ईयर से वीक पे भी डिवाइड करके पेमेंट कर सकते हैं। अपनी ज़कात का शेयर 10%, 15%, 30%। ज़कात सबसे पहले घर वालों के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए होती है। आप हमारे घर वाले हैं इसलिए हम आपसे मांगते हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ, किसी ना किसी डोमेन में, द स्पेक्ट्रम इज ह्यूज एंड वी वुड लव टू कनेक्ट, वी जस्ट लव कनेक्टिंग विद यू ऑल। सो कोई फीडबैक है तो जस्ट कम बैक टू अस। मुझे लोग मादरे नस्ट भी कहते हैं, तो मेरी पूरी ममता के साथ आई एम हियर फॉर एवरीथिंग। हेल्प चाहिए तो एक दफा एक्चुअली एक अलमनाई थे यूएस के, उन्होंने इतनी क्यूट एक रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा हमारे घर में प्लम्बर की जरूरत है, अब्बू अम्मी अकेले रहते हैं, तो वो रिटायर्ड है अब्बू, प्लम्बर नहीं हमें मिल रहा, तो कैन यू हेल्प। तो हमने एक्चुअली इस किस्म की भी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते होते हैं। यार कभी तो प्लम्बर भी चाहिए हो तो यू कैन कॉल अस, लेकिन लेट्स स्टे कनेक्टेड, let's Thank build you this so network. much. Thank you for saying all of that. और I think इससे ज्यादा कोई क्या मांग सकता है किसी इंस्टीट्यूट से। इतना वेलकमिंग अगर आपका है, और लाइक यू ऑलरेडी नो कि पीपल बैंक ऑन यू फॉर ऑल ऑफ दैट। और ये सारी ऑफर्स का भी थैंक यू। उससे पहले जो आपने NBS टाइम की बात की, उस पर तो मैं शायद बहुत लंबा रिप्लाई दे सकती हूँ। निम्स जो हमारा लाल कुर्ती वाला कैंपस था, कितनी बॉन्डिंग थी इन सब टीचर्स का, मैम असफिया, मैम जीनत, मैम जीनत, सर साबिर हुसैन जाफरी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और मैम असफिया इज लाइक पर्सनालिटी जो आप देखते हैं एंड यू जस्ट वांट टू बी लाइक हर, यू नो, कहाँ से क्या क्या इंस्पिरेशन है जो आप ले सकते हैं। शी इज जस्ट दैट अमेजिंग। और भी बहुत से टीचर्स हैं, सर अतर हमीद भट्ट की बातें मैं अभी तक याद करती हूँ। जस्ट यस्टरडे आई वाज टेलिंग माय मदर कि उन्होंने एक बात ये कही थी, अब जब मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ तो मेरे माइंड में वो बात जरूर आ जाती है कि तब तो मुझे समझ ही नहीं आई थी। मैम जैनब डार, वो विजिटिंग फैकल्टी थी, लेकिन वो अब जितना अमेजिंग काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि जो हमें पढ़ाते हुए वो बातें करती थी, आई वाज टू इमैच्योर टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन वो उनकी थिंकिंग उस तरह की जो थी। तो वी हैव हैड सम ब्रिलियंट टीचर्स माशाल्लाह, और बहुत अच्छा टाइम रहा। सरफराज भाई, शाउट आउट। सरफराज भाई जो हमारे फोटोकॉपियर थे, आई मीन उनकी कोई रिटेंशन, उनकी मेमोरी, हम सिर्फ एंटर होके पूछते, सरफराज भाई हमारे पास ये वाले नोट्स हैं,
That's it. कोई नोट्स ऐसे तो नहीं है जो मेरे पास नहीं है और वो कहेंगे सना आपके पास मार्केटिंग का वो वाला नहीं है, लेक्चर नहीं है, अच्छा तो दे दें. That's it. So he was just awesome like that. So NBS के बहुत बहुत awesome लोग हैं और निम्स वाले कैंपस में तो मुझे लगता है कि if anybody tells me to go back and do that all over again in a heartbeat any day. So yes, बहुत strong community है हमारी माशाल्लाह. आप जैसे लोगों की वजह से more power to you. अल्लाह ताला आपके इस काम में बहुत बरकत डाले, बहुत आसानियां डाले. I hope हमारे चैनल के थ्रू भी लोग इस चीज़ को अब और बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि exactly क्या हो रहा है and they come forward. और आप लोगों ने इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखा हुआ है, सो यू नो अगर किसी को क्वेश्चंस हैं कुछ हैं तो that's not a problem either. You can have a look at everything and you understand कि आपका पैसा अगर आ रहा है तो वो कहाँ जा रहा है और वाकई हेल्प हो रही है. Understanding that, enabling all of that. Thank you so much for doing all of that. Really, really grateful to you and all your efforts. Thank you so much. आप सबका है. हम यहाँ पे निगहबान बैठे हैं, कभी भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप सबका है, आपकी ओनरशिप हमेशा हमेशा की है. Thank you so much for the service that you are doing to the institution. And I just love listening to you as well. मैंने सना से प्रॉमिस किया था कि एक सना का इंटरव्यू होगा जो कि मैंने लेना है, क्योंकि we need to listen to her story as well because she is the real star. जिस तरह वो कर रही है, सारा कुछ लेके चल रही है. So सना, एक दिन आपका इंटरव्यू, मेरा ख्याल है 100th इंटरव्यू सना का अपना होना चाहिए. I'd love to do that. हम ऑफ कैमरा बात करेंगे इस पे. Thank you so much. Thank you for all the kind words for me as well. Thank you everyone for watching. I hope आपने इंटरव्यू उतना ही enjoy किया जितना मैंने किया. It was really fun connecting to you, Maria. Thank you so much for taking the time out. Allah Hafiz.